These are energy level diagram of N-type and P-type semiconductor. We know in N-type semiconductor, pentavalent impurity are 8. In the pentavalent, 4 electrons make 4 covalent bond with nearest 4 silicon atom. At room temperature, impurity atom donate 5th electron in crystal to gain stability. तो जब हम इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं तो हमें उस 5th इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ड्रॉ करना होता है जिसे इम्प्योरिटी एटम ने क्रिस्टल में डोनेट करके स्टेबिलिटी को गेन किया है। एंड वी नो 5th इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लूजली बॉन्डेड, सो 5th इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल प्रेजेंट जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। यही यदि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर impurity atom is trivalent impurity. Impurity atom accept one electron from crystal to gain stability. तो जब हम p टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें उस 4th इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है जिसे इम्प्योरिटी एटम ने क्रिस्टल से एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी को गेन किया है। एंड वी नो इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रिस्टल, so impurity energy level present just above the valence band. याद रखना इन p टाइप सेमीकंडक्टर impurity energy level just below the conduction band and p टाइप सेमीकंडक्टर impurity level present just above the valence band. This is p-n junction formation and we know in junction formation two processes are obtained. First is diffusion process, second is drift process. First, we discuss diffusion process. In the diffusion, majority charge carrier take participate. Majority charge carrier diffuse from high concentration to low concentration. याद रखना जब भी मेजोरिटी मूव करता है, मेजोरिटी के मूव करने का रीजन concentration gradient. Now we know in N-type semiconductor, electron density is very very high compared to in P-type semiconductor. So due to concentration gradient, electron diffuse from N side to P side. Same in P-type semiconductor, hole density is very high. So due to concentration gradient, hole diffuse from P side to N side. At junction, these charge carriers recombine make covalent bond. So at junction, due to immobile impurity ions, a region produced which have only immobile impurity ions. This region is known as depletion layer. याद रखना in depletion layer only negative positive ions are present. In depletion layer कभी भी कोई charge carrier produce नहीं होगा. Now N side positive ions होंगे and due to positive ions N side becomes at high potential and P side negative ions होंगे, so P side becomes at low potential. This potential difference is known as potential barrier. Due to potential difference, an internal electric field produced in depletion layer and its direction N side to P side. This internal electric field opposes the diffusion process, so diffusion current decrease. तो ये तो हुआ diffusion process. डिफ्यूजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करेंगे और मोशन करने का रीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. नाउ वी डिस्कस सेकंड प्रोसेस, ड्रिफ्ट प्रोसेस. इन ड्रिफ्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेक पार्टिसिपेट. वी नो in the depletion layer, due to thermal energy, covalent bond are break and charge carrier electron holes are produced. Due to internal electric field, these charge carriers are drift. Hole move in the direction of electric field and electron drift opposite to electric field. जब चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन N2P है तो होल N से P की तरफ ड्रिफ्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन P से N की तरफ ड्रिफ्ट होंगे. And due to these, a current flow and this current is drift current. And drift current mainly depend on temperature. जब ये जंक्शन बनना स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट लार्ज होगी, ड्रिफ्ट करंट बहुत स्मॉल होगी, नेग्लिजिबल होगी. ड्यूरिंग द जंक्शन
चार्ज के रेट डिफ्यूज होते जाएंगे तो डिप्रेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीज, सो डिफ्यूजन करंट रैपिडली डिक्रीज, and at equilibrium magnitude of diffusion current becomes equal to magnitude of drift current. When magnitude same and direction opposite, so net current passing from junction 0 and we say junction formation is complete. तो जब जंक्शन फॉर्मेशन होगा तब नेट करंट जीरो होगी, डिफ्यूजन करंट नॉन जीरो, ड्रिफ्ट करंट नॉन जीरो, but net current passing from junction is zero. This is equilibrium position and we say junction formation is complete. This is forward bias condition of diode. In forward bias, P connected positive and N connected negative terminal of external battery. P connected positive and N connected negative terminal of external battery. So in forward bias, external battery oppose the barrier voltage. Now, when external voltage increase, then barrier voltage decrease. आप सेकंड नंबर के डायग्राम में देखिए, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में जो वी नोट है ये बैरियर वोल्टेज है, अनबायस कंडीशन विदाउट बैटरी। अब हमने फॉरवर्ड बायस में बैटरी यूज की, जब फॉरवर्ड में बैटरी यूज करेंगे तो बैटरी की वजह से बैरियर रिड्यूस होगा, तो ये जो वी नोट है ये एन साइड का पोटेंशियल है, ये पी साइड का पोटेंशियल है। एन साइड और पी साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। जब हमने फॉरवर्ड बायस में बैटरी यूज करी तो बैटरी की वजह से बैरियर पहले से रिड्यूस हो गया। जब बैरियर रिड्यूस होगा तो मेजॉरिटी का अपोज कम होगा, जिससे मेजॉरिटी डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। यदि हम फॉरवर्ड का वोल्टेज कंटिन्यू इंक्रीज करें तो बैरियर की हाइट कंटिन्यू डिक्रीज होती जाएगी और एक पर्टिकुलर वोल्टेज बैरियर बिकम जीरो, एंड व्हेन बैरियर बिकम जीरो तो मेजॉरिटी चार्ज करे डिफ्यूज इन लार्ज अमाउंट एंड डायोड इजीली अलाउ करंट। तो फॉरवर्ड का मतलब है हमने बैटरी यूज करके इसके बैरियर को रिमूव कर दिया। जब हम बैटरी लगाकर बैरियर को रिमूव कर देंगे तो मेजॉरिटी चार्ज के इजीली डिफ्यूज होंगे। इट मींस डायोड इजीली अलाउ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट P2N, because in forward bias diffusion current increase in large amount, so from diode mainly diffusion current flow. In reverse bias, P connected negative terminal and N connected positive terminal of external battery. So in reverse bias, external battery support the barrier voltage and due to external battery, barrier voltage increase. डायग्राम बी में ध्यान से देखना बेटा, जो वन वाला डायग्राम है वो अनबायस कंडीशन का है, पर जब हम रिवर्स बाइक की बैटरी यूज करेंगे तो बैटरी की वजह से बैरियर इंक्रीज होगा। तो जो सेकंड नंबर का डायग्राम है वह है रिवर्स बायस की कंडीशन में। रिवर्स बायस का वोल्टेज हम कंटिन्यूअस इंक्रीज करेंगे तो बैरियर की हाइट भी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी। Now in reverse bias, due to external battery, barrier voltage increase and this barrier more oppose the diffusion process, so diffusion current continuous decrease and at particular voltage diffusion current becomes negligible, almost zero. So in reverse bias, only minority charge carrier cross the junction, means only drift current flow from junction and its direction is N2P, but this current is negligible compared to diffusion current because diffusion due to majority charge carrier and drift due to minority charge carrier, and minority charge carriers are negligible compared to majority charge carrier. So in reverse bias, order of current is very low. Order of current is microampere or nanoampere, and in practically this current does not consider. तो हम बोल सकते हैं डायोड इज ए डिवाइस विच अलाउ करंट ओनली वन डायरेक्शन P2N when diode is in forward bias and reverse bias diode does not allow current.
याद रखना डायोड की मेन प्रॉपर्टी होती है डायोड अलाउ करंट ओनली वन डायरेक्शन P to N. This is capacitor filter. We know रेक्टिफायर कन्वर्ट द AC into DC, बट किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। मीन्स किसी भी रेक्टिफायर से हमें 100% DC ऑब्टेन नहीं होगी। रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो है पल्सेटिंग DC, मतलब हमें रेक्टिफायर के आउटपुट में DC तो मिलती है बट उसकी वैल्यू टाइम के साथ वेरी करती है। हमें चाहिए कांस्टेंट वैल्यू DC। तो पल्सेटिंग DC को कांस्टेंट वैल्यू में चेंज करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। हमारे सिलेबस में कैपेसिटर फिल्टर है, तो ये कैपेसिटर फिल्टर का डायग्राम है। याद रखना फिल्टर सर्किट में हम कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड parallel to load resistance and inductor always connected in series with load resistance. चलिए अब हम कैपेसिटर फिल्टर की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट होगा पल्सेटिंग DC। तो जब वोल्टेज टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब वोल्टेज टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। बट हम कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई रखते हैं। जब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई होगा तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मींस कैपेसिटर इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा। तो कैपेसिटर की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर चार्ज तो इमीडिएट होगा बट इमीडिएट डिस्चार्ज नहीं होगा। सो अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज अप्रोक्सीमेट रिमेन कांस्टेंट। एक बार कैपेसिटर जिस पीक वैल्यू पर चार्ज हो जाता है, अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज अप्रोक्सीमेट रिमेन कांस्टेंट। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम में यह है इनपुट, और जो सेकंड वाला डायग्राम है यह है आउटपुट विद कैपेसिटर फिल्टर। ध्यान से देखना, एक बार कैपेसिटर जिस पीक वैल्यू पर चार्ज हो गया, अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज अप्रोक्सीमेट रिमेन कांस्टेंट। अब यदि हमें कैपेसिटर को फिल्टर की तरह यूज करना है तो इसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई होना चाहिए। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई होने के लिए C की वैल्यू हाई होनी चाहिए, RL की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और जो हमने इनपुट में AC सिग्नल दिया है इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होनी चाहिए। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन बहुत जल्दी होंगे, स्पीडली होंगे, और इनपुट में जितना जल्दी वेरिएशन होगा अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज उतना ही कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो फिल्टर्स के लिए C की वैल्यू हाई होनी चाहिए, RL की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और इनपुट AC फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। दिस इज जेनर डायोड एज DC वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे बिहेव करता है इसका डायग्राम है। ध्यान से देखना, ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है। अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है। जब हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो सर्किट से करंट इंक्रीज होगी। अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जेनर का कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जब जेनर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो जेनर से कोई करंट पास नहीं होगी एंड जेनर डायोड बिहेव एज ए ओपन सर्किट। अब हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो सर्किट में करंट इंक्रीज होती जाएगी, और जब करंट इंक्रीज होगी तो RL रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता जाएगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जब RL रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जेनर के ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होगा, इक्वल होते ही जेनर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मीन्स अभी तक जो जेनर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये जेनर डायोड भी करंट अलाउ करना स्टार्ट कर देगा। जब हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगी। बट जेनर का ब्रेकडाउन हो गया है तो सर्किट में जितनी भी एक्स्ट्रा करंट होगी और एक्स्ट्रा करंट बाईपास फ्रॉम जेनर डायोड।
सर्किट में जितनी भी एक्स्ट्रा करंट है उसको जेनर बाईपास करना स्टार्ट कर देगा। जेनर लोड रेजिस्टेंस में उतनी ही करंट अलाउ करेगा जिससे लोड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जेनर वोल्टेज के इक्वल मेंटेन रहे। मीन्स ये जेनर डायोड इस लोड रेजिस्टेंस में उतनी ही करंट अलाउ करेगा जिससे यहाँ का वोल्टेज वी जेड इक्वल रहे, और जितनी भी एक्स्ट्रा करंट होती है उसको जेनर बाईपास करना स्टार्ट कर देता है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ए जेनर डायोड वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। When input voltage increase, then current passing from series resistance। बेटा ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इससे टोटल करंट पास होगी। यदि हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो टोटल करंट तो इंक्रीज होगी, मींस करंट पासिंग फ्रॉम आरएस इंक्रीज। आपसे पूछा जाए करंट पासिंग फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आफ्टर ब्रेकडाउन आप इनपुट वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करिए, लोड रेजिस्टेंस से एक कांस्टेंट करंट ही पास होगी, क्योंकि जेनर एक कांस्टेंट करंट ही इधर अलाउ करता है। तो करंट पासिंग फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। करंट पासिंग फ्रॉम जेनर डायोड, यदि हमने वोल्टेज इंक्रीज किया है तो टोटल करंट इंक्रीज होगी, तो करंट पासिंग फ्रॉम जेनर डायोड आल्सो इंक्रीज एंड वोल्टेज अक्रॉस जेनर रिमेन कांस्टेंट। तो ये जेनर का एक कंसेप्ट होता है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी होते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे पूछे कि लोड करंट से कितनी करंट आएगी, लोड रेजिस्टेंस से करंट कितनी होगी, तो लोड रेजिस्टेंस से करंट होगी वी जेड अपॉन आर एल। फिर टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट कैलकुलेट करने का मेथड है, हम मान लेते हैं सप्लाई वोल्टेज है वी, जेनर पर वोल्टेज वी जेड रहेगा, तो इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आएगा वी माइनस वी जेड। यदि सप्लाई वोल्टेज V है, जेनर का वोल्टेज VZ है, तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज V माइनस VZ होगा। इससे हम टोटल करंट I कैलकुलेट कर सकते हैं, और I का फॉर्मूला होगा V माइनस VZ अपॉन RS। अब आपको टोटल करंट पता है, लोड करंट पता है, तो हम जेनर करंट बता सकते हैं, और जेनर करंट इक्वल टू I माइनस IL। तो ये जेनर पर बेस्ड कंसेप्ट है, इससे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का अरेंजमेंट है। NPN ट्रांजिस्टर है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। नाउ अब हमें इसकी बाइसिंग समझना है। ध्यान देना बेटा, ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव मोड में वर्क करता है, एंड वी नो फॉर एक्टिव मोड बेस एमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। बेस एमिटर फॉरवर्ड होना चाहिए और बेस कलेक्टर रिवर्स होना चाहिए। यदि इस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करने के लिए P का पोटेंशियल N के कंपेयर में हाई होना चाहिए। It means potential of P greater than potential of N। इस जंक्शन को हमें रिवर्स करना है, एंड फॉर रिवर्स बायस पोटेंशियल ऑफ P लेस देन पोटेंशियल ऑफ N, मीन्स पोटेंशियल ऑफ P लेस देन पोटेंशियल ऑफ N। तो हम एक सीक्वेंस लिख सकते हैं, सबसे कम पोटेंशियल N का होगा, उसके ज़्यादा P का, और सबसे ज़्यादा N का। मीन्स सबसे हाई पोटेंशियल होगा कलेक्टर, देन बेस, और सबसे कम एमीटर। अब आपसे कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन दे दे, जैसे डायग्राम में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो जिसको कॉमन किया है उसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करेंगे। मीन्स बेस का पोटेंशियल जीरो है, अब एमीटर का पोटेंशियल बेस से कम होना चाहिए। यदि बेस जीरो है तो कलेक्टर का पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, और यदि बेस जीरो है तो कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स बेस के रेस्पेक्ट में एमीटर लो पोटेंशियल पर होगा, एमीटर का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं यही ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर होता,
यदि कॉमन एमीटर होता तो एमीटर का पोटेंशियल 0 कंसीडर करते। अब एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस का पोटेंशियल ज़्यादा है, यदि एमीटर को 0 कंसीडर किया है तो बेस का पोटेंशियल पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर का पोटेंशियल और ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स यदि बेस का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो कलेक्टर का पोटेंशियल डबल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपको ऐसा एक डायग्राम बनकर आ सकता है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। तो आप इस मेथड की हेल्प से ट्रांजिस्टर की बायसिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का डायग्राम है। ध्यान देना, इसमें हम जो VBB है उसको इनपुट कंसीडर कर रहे हैं। एंड वी नो एक जंक्शन तभी करंट अलाउ करता है जब उसका बैरियर ओवरकम होता है। ओवरकम करने के लिए सप्लाई वोल्टेज उसके बैरियर वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इनपुट वोल्टेज को सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0 से 0.7 वोल्ट तक इंक्रीज करेंगे तो 0.7 से पहले उसका बैरियर ओवरकम नहीं होगा। इट मीन्स बेस एमिटर जंक्शन कोई करंट अलाउ नहीं करेगा। सो बेस करंट 0 एंड करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट आल्सो 0। इफ कलेक्टर करंट 0 तो आउटपुट बिकम मैक्सिमम VCC। मीन्स जब इनपुट वोल्टेज 0 से 0.7 तक राइज करेगा तो इस सिचुएशन में आउटपुट वोल्टेज अप्रोक्सीमेट VCC के इक्वल मेंटेन रहेगा। When input voltage increase from 0.7 then इनपुट सर्किट में बेस करंट फ्लो होगी और जब इनपुट सर्किट में बेस करंट फ्लो होगी तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट लार्ज फ्लो होगी। मीन्स व्हेन बेस करंट फ्लो then collector current also flow and collector current value always greater than base current because beta always more than 1। अब हम इनपुट वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करेंगे। जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो बेस करंट इंक्रीज होगी, कलेक्टर करंट इंक्रीज होती जाएगी जिससे आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा एंड एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज ट्रांजिस्टर बिकम सैचुरेट। Transistor becomes saturated. It means this battery VCC allow maximum current in output circuit. After saturation, if input voltage further increase, then base current increase, but collector current not increase. Collector current become constant. If collector current constant, then output voltage also become constant। मीन्स एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में आ जाएगा और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में आ गया उसके बाद आप इनपुट वोल्टेज में कितना भी इंक्रीमेंट करिए, बेस करंट में इंक्रीमेंट होगा, कलेक्टर करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो जो ये ग्राफ है इसको ध्यान से देखना। जो फर्स्ट रीजन है इसको बोलते हैं कट ऑफ मोड, second region is active mode and third region is saturation mode। In active mode transistor work as an amplifier because active region में ही इनपुट के साथ आउटपुट में चेंज आ रहा है और जिस रीजन में इनपुट के साथ आउटपुट में चेंज होता है उसी रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन ट्रांजिस्टर वर्क एज ए स्विच। इन कट ऑफ मोड ट्रांजिस्टर वर्क एज ए ओपन स्विच एंड सैचुरेशन मोड ट्रांजिस्टर वर्क एज ए क्लोज स्विच। And cutoff and saturation region common emitter transistor used to make NOT gate। क्योंकि नोट का लॉजिक होता है इनपुट में लो होगा तो आउटपुट में हाई होगा और इनपुट में हाई होगा तो आउटपुट में लो होगा। और इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं एक्टिव रीजन में ध्यान से देखना, जब इनपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट में डिक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स जब भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है देन 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट।